Hello, friends. The FMG results have come, and a lot of us are eager to know how the students prepared. So, we have an amazing student here who had a great performance, Dr. Aryan Rajawat, who secured 182 marks in his first attempt. So, students are always wondering how to clear the exam in the first go, and here we have a student who created 182 score straight away, which is an awesome performance. So, Dr. Aryan, congratulations to you from all of us here at Team Cerebellum. Thank you, sir. Thank you so much. And I am sure the juniors who would be listening to this would want to know what did you do correctly or what did you do differently that the exam, the results are right here with us and you are having this interview. So please share some insight as to when did you start preparing for the exam and how did you go about it? Okay, sir. So first of all, I wanna thank my family. मेरी मम्मा ने बहुत like I was here and she took care of me very well. Yeah, And two special mentions I wanna mention here actually. yeah, Two of my great friends like Chirasmita and Matangi. yeah. Yeah, they were like a very constant support. So we need some support always, no doubt Always, about it, always. right? Yes. And जब And to, आपने yes, sir. जब आपने तैयारी शुरू करी, like when did you begin the studying for the exam? Yes. Just like my seniors, Hmm. they told us कि it is a good platform. So I subscribed it, and like on the 1st of August only. For Since the the for the for the mission plan, yeah, 200 for this plan. campus, yes, sir. From the So very first day, so you started in August and you were able to comfortably finish for the January exam. yes, sir. 5.5 months of Very preparation. comfortably. So you were able to attend the live classes as well as make time to study by yourself. Yes, sir. Like the thing is that the live classes are designed as such that you can revise it on your own, like once or twice as well. You can like twice as well. Right. So yeah, And you used to give the ENDs and GTs also you were yes, able to manage? yes, sir, sir. Uh, since I started preparing actually the first Hmm. day, I Hmm. thought it is too much to study, and there are 19 subjects, and how will I study in Yeah. like all the ENTs and GDs? Yeah. But when I started, like Yeah. from the first class, second class, Hmm. it was it was just like a flow, and I realized that I have too much of the time to inculcate this FMG exam. Okay. So, So, when you were preparing, did you feel there were some subjects you were very comfortable with, which kind of helped you clear the exam? Because see, nobody can really do all 19 subjects. So, were there some subjects which were like ekdam he, pushed you in the safe zone of the result? yes, sir. So from starting only, I fixed in my mind that I have to master four subjects or at least three subjects, which Yeah. are big subjects actually. The Mm-hmm. surgery, obs and gynae, and PSM. Okay. This will like help you. These are like scoring subjects, sir. Okay. So इसमें क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहता है Hmm. और इस चीज हम जो है एग्जाम आसानी से क्लियर कर पाते हैं. सो ये Okay. मैंने पहले ही कर रखा. तो सो सच. अगर मैं आपको पूछूं लाइक फॉर पीपल हु आर लिसनिंग जो नई नई प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं, एक तो आपने बताया यू स्टार्टेड इन ऑगस्ट, सो 5.5 months आर इनफ. इट्स नॉट दैट यू नीड अ ईयर मोर और टू. मोर देन इनफ सर, लाइक फॉर 3 revisions ऑल्सो. And any other tips you want to say about the materials you use, the notes you used, the MCQ solving that you did? उसकी कुछ मुझे tips दीजिए जो मैं स्टूडेंट्स को बताऊं, क्योंकि वो मेरी बातें नहीं सुनते. मैं कुछ भी बोलूंगा बोलेंगे सर आप तो आपके हिसाब से बोलते हो, यू एक्चुअली टेल फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव. तो आप स्टूडेंट से सुनना चाहता हूँ मैं. sure sir. So first of all, I was also like in the same stream, right, in that student group. या. तो आई वाज आल्सो फोमो क्रिएट किया था कि यहाँ के नोट्स अच्छे हैं, वहाँ के नोट्स अच्छे हैं. हम्म. एक दो सब्जेक्ट्स के लिए मैंने भी ट्राई किया, बट हम्म. फिर वो सब्जेक्ट छूटता है, वो राइट. कंप्लीट नहीं हो पाता. देन यू राइट. रियलाइज कि ये नहीं हो पाएगा. राइट. सो आई फॉलोड ऑल द मिशन नोट्स ऑन. तो आपको अलग से मेन नोट्स या कहीं और से कुछ नहीं करना पड़ा, द नोट्स दैट यू मेड वर इनफ. दीज आर सर मोर देन इनफ एक्चुअली, बिकॉज वो भी अगर आप 2 या 3 बार रिवाइज कर लो. हम्म. तो आई वाज एज आई सेड सर कि मुझे वहां पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिकॉल हो रहे थे. हम्म. सेंटेंसेस जो क्लासेस में बोले जाते हैं वो मतलब राइट. इट वाज इकोइंग इन माय माइंड.
राइट। कि हाँ सर ने ये चीज बोली थी, ये क्वेश्चन आया है। एग्जैक्ट। तो अगर मुझे स्टूडेंट्स बोले कि सर ये टॉपिक मिस हो गई है, इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, ये नहीं पढ़ाई, तो मैं उनको क्या बोलूँ? सर ये एक्चुअली दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन केम टू माय माइंड आल्सो ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। हम्म। बट आफ्टर एग्जाम आई रियलाइज कि सर वो टॉपिक्स, वो कुछ भी आ सकता है सर, वो टॉपिक फिक्स नहीं रहते हैं। राइट। जो टॉपिक्स फिक्स्ड हैं, हमें हम्म। उनमें से मैक्सिमम स्कोर करना है। राइट। और वो थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा सा क्लिनिकल नॉलेज उनसे भी सॉल्व हो सकते हैं। बट राइट। जो मेन क्वेश्चंस हैं वो हम्म। नोट्स से पढ़ के सॉल्व हो जाते हैं सर। राइट। सो तो एक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। वन सिंगल सोर्स सर, प्लीज स्टिक टू वन सिंगल सोर्स, दैट्स इट। और कोई और टिप जो आप देना चाहेंगे? श्योर सर। जैसे कि मैंने पहले तो बता ही दिया सर कि पीवाईक्यूज एक्चुअली हाँ, एक सिंगल सोर्स से ही पढ़ना है कोई भी सब्जेक्ट, ओके। चाहे वो कोई भी लाइक फैकल्टी हो। एक सिंगल सोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट। सेकंड थिंग, पीवाईक्यूज एंड पीवाईटीज मुझे मुझे मतलब इतना हेल्प किए। मतलब मेरे हम्म। वन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक 182, राइट। बट इतना हेल्प किया मतलब इट वाज लाइक दिस क्वेश्चंस आई हैव सीन ऑलरेडी। हाँ। लाइक जैसे सर्जरी में हमेशा वो फ्री गैस अंडर डायफ्राम पूछते हैं। होलो विस्कस परफोरेशन एंड ऑल दैट सर। या सो तो पीवाईक्यूज पीवाईटीज पर डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। चाहे मैंने सर गूगल सर से भी सुना था हम्म। और मैंने भी ध्यान दिया था हम्म। कि लास्ट के 2 डेज में मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज किए थे। राइट। ओके। मैंने नोट्स को, मैंने क्या जितना मैंने पढ़ा है वो हम्म। याद आ जाएगा एग्जाम में। मैं राइट। सिर्फ पीवाईक्यूज पे ध्यान देता हूँ। और राइट। उसमें से मेरे सर 20-25 क्वेश्चन सही हो गए सर, सिर्फ बढ़िया। पीवाईक्यूज। वंडरफुल। यस सर। और प्रेपरेशन कब तक करनी चाहिए? सर ये मैं हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तब क्या करें? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। देयर वाज अ टाइम सर आई वाज लाइक कि आई शुड थिंक ऑफ द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ओके। एंड यस सर। एंड वो अप्स एंड डाउन्स ने मुझे ये बताया, मतलब मैं बताना चाहता हूँ जूनियर्स को, सो कॉल्ड जूनियर्स को, कि अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आएंगे। मैंने सिर्फ एक चीज टीचर्स की ध्यान रखी जो मुझे मतलब एक तरीके से दिमाग में बैठ चुकी थी कि टेक योर प्रिपरेशन टू द लास्ट मिनट। राइट। इस चीज ने मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस चीज ने ही मुझे एग्जाम क्लियर करवाया, दैट्स इट। चाहे वंडरफुल। कुछ भी हो जाए, चाहे हम्म। आप दिन का सिर्फ 2 घंटा पढ़ो, हम्म। बट लास्ट डे तक पढ़ोगे तो हम्म। आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मोर देन 90% हो जाएगी क्लियर करने की। बढ़िया। और ये से यही 3 चीजें थी जो मैं बताना चाह रहा था सर। बढ़िया। कि नोट्स नोट्स का जो सोर्स है, हम्म। फैकल्टी सिर्फ एक ही रखनी है, पीवाईक्यूज पीवाईटीज, हम्म। एंड प्रिपरेशन को लास्ट मिनट तक ले जाना है सर। बढ़िया। तो आर्यन, मैं आपकी बातों से सुन के ये कहना चाहूंगा कि आपकी रिजल्ट बाय नो स्कोप कोई फ्लूक से आई है। आपकी डेडिकेशन से आई है, आपके एफर्ट से आई है, तभी आप यहाँ हो। और अगर थैंक आप यू। जैसा कमिटमेंट आपके फॉलोअर्स रखेंगे तो डेफिनेटली in every exam they will also be like you, creating results just like you, which is so pleasant to hear. थैंक यू सो मच सर। सर So यही कहना चाह रहा था मैं कि सर लास्ट में कि बहुत बहुत ज्यादा लगा था कि सर नहीं हो पाए, कभी हो पाएगा। सो जो अप्स एंड डाउन्स वाली बात है ना सर, मैं वापस स्ट्रेस करना चाहूंगा, yeah. क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है सर। ये मैंने फील किया है पर्सनली, Right. तो मैं बता सकता हूँ। Right. बहुत मतलब मतलब मुझे मतलब कम, मिनिमम टू मिनिमम 15 to 20 टाइम्स आई फेल्ट कि यार नहीं होगा इस बार, लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। Yeah. बट जो मैंने बताया, सो कांस्टेंट सपोर्ट सिस्टम जो होता है, वो Mm. लोग आपको हेल्प करते हैं। दे Right. बिलीव्ड इन, और मैंने कंटिन्यू किया लास्ट मिनट तक। सो और फिर जब ऐसी रिजल्ट आए तो वो रिजल्ट इट फील्स मोर स्वीट एंड मोर रिवॉर्डिंग. यस सर। Wonderful, एग्जैक्टली। wonderful. यस So सर। thank you, Dr. Aryan. Thank you so much for your time. And we थैंक are यू सो मच सर। here very proud of you. I'm sure your family is too, but definitely we here are very proud of you. And keep थैंक यू working सो मच। hard and keep, थैंक यू। studying the way you have been, so you will, reach great heights in future. थैंक यू सर। थैंक यू फॉर मेकिंग सर्जरी सो मच इजियर सर। I'm इट happy वाज to लाइक hear नेवर that. बिफोर। I'm थैंक happy यू to सो hear मच। that.